Nauka Shah and I welcome you all on behalf of Nauka Digital Institute. I welcome you all on the series of talk show by expert faculty members of Naukar Institute. Our motto is, we believe in the best, and for providing best, we tried our best. You having certain issues, you having certain questions related to particular subject which you are studying at the final level. And if you're facing any issues, any questions, we having a solution. So today we are going to discuss FR, that is financial reporting, and we are going to give all answers for your all kind of doubts, all kind of questions, and all kind of confusion. And for solving your doubts and your confusion, we having to one of the two well-known faculty member of Naukar Digital Institute. So first of all, I want to introduce them, and I start with Professor Rahul Malkan sir, popularly called as RM sir, is one of the renowned faculty in Mumbai for students of a CA final. An expert in a subject for FR and SFM, he is a favorite among the students for the crash course batches. A teacher by profession and passion, he is not only involved in improving the examination score, but also the lives of his students. Since the last 20 years, he has taught more than 20,000 students and helped to create hundreds of CA professionals and mentored countless more to make their career. He was also a visiting faculty at ICAI Study Center in Mumbai. He is also a closet motivator, regularly giving the talks in various colleges and B schools. Currently, he is running his own RM Institute, RM Academy. You have landed to the right person for your career and life. As he always says, together we can create something new. Together we can create something new. Together we can work on something awesome. So here we having the first professor with us, and the second one, that is a CA Vatsal Shah sir. He is a chartered accountant providing consultancy with expertise in the field of accounting standards. Along with the practice, the author has kept his academic roots intact. He is academically active and vibrant. He is currently associated with the Naukar Institute and a highly reputed coaching institute for a CA, CS and CPA. He has completed his master in commerce from Gujarat University, and he secured rank in the university during the second semester of MCOM. And he has also completed certificate course in Ind AS organized by ICAI. Being a professor at the Naukar Institute and practicing chartered accountant, the author has in-depth knowledge as well as a practical insight. He actively engages with aspiring CA candidates. He motivates and guides them through the rough and tumble of a difficult CA examination. So, I feel proud, we feel proud, you both are here to guide our students for their questions, for their confusions. We welcome you, sir. Thank you, Nauka. So, can we start with the session, sir? Surely. Okay. So, sir, I have a list of questions like frequently asked by students, and I just want to go through the whole list, and we have to provide like full solution for their questions. So, my first question is for Rahul, sir. Sir, please give your views on the structure of financial reporting as a subject. Financial reporting, Nauka, is paper one, first of all, of CA final. Now, when we say paper one, the importance itself is dignified, that the first time ever a CA final student gives a paper, it's for FR. Another very important thing we need to notice when a CA final student comes in final, that this is not accounts. You know, we try to correlate it with accounts too much. The name of the paper is financial reporting. So, reporting is more important than accountancy. When a student comes to final, accountancy is a foregone conclusion.
we assume that they know their accounts very well. In slang language, in Mumbai language, balance sheet tally करना तो foregone conclusion है. मतलब balance sheet तो tally होना ही चाहिए. But it's very important कि tally होने के बाद हम सारी चीजों को कहाँ लिख रहे हैं. I would rather say reporting का मतलब. अब when we started 11th standard, we used to say cash bank कहाँ आएगा? Asset में. बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसे सिर्फ असेट में दिखाना है, बट एक एग्जैक्ट पोजीशन पे दिखाना है, उस पे डिटेल्स दिखाना है, उसका रिपोर्टिंग करना है. सो डिस्क्लोजिंग इट, रिपोर्टिंग इट इन द राइट वे इज द पेपर दैट इज नोन एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. दैट इज द पेपर वन. One bad part which I feel in final is that we have only one paper of financial reporting, that is 100 marks. Sorry, I may sound biased because I take that paper, but I think there should be two papers of FR, like 100 mark as it is there in IPCC. And anyways, you guys are becoming chartered accountant. So when you say chartered accountant, you have to be master of accounts. One of the another FAQs will be there about the length, I'm sure. So 100 marks and such a huge portion, I feel thoda bahut, ICAI को lenient होना चाहिए, I would rather say. Students को शायद अच्छा नहीं लगे, but 200 मार्क का पेपर अच्छा रहेगा FR के लिए. क्या कहते हो वत्सल सर? Yes sir. And actually, if you ask me, madam, friends, आपको पता है कि आपने इंटर लेवल पर सब्जेक्ट के नाम अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट है, पर जब फाइनल का नाम ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है. सर ने जैसे बताया, इट्स अज्यूम कि आप ऑलरेडी इंटर लेवल तक अकाउंट्स आपको परफेक्ट आता है. नाउ इट्स टाइम फॉर डिस्क्लोजर. जस्ट आपको अकाउंटिंग एंट्री से कोई मतलब नहीं है, वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन प्रेजेंट कहाँ पे होना चाहिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन, आपके बैलेंस शीट, OCI, PNL, इवन नोट्स टू अकाउंट्स के डिस्क्लोजर के साथ आपको प्रिपेयर होना. एंड इसीलिए मैं आपको कई बार क्लास में भी हम डिस्कस करते हैं कि जब सब्जेक्ट पढ़ो तो साथ में कहने से एक लिस्टेड कंपनीज की बैलेंस शीट को लेकर बैठना चाहिए. हर एक चीज को कोरिलेट करो कि ये पर्टिकुलर चीज का प्रेजेंटेशन कहाँ पे हुआ है, एंड एग्जैक्टली अगर वो लिंक कर पाए तो सब्जेक्ट अच्छी तरह से आप जान पाओगे. Okay. Thank you very much, sir, for providing a perfect idea regarding the structure of this particular subject. Thank you very much, sir. So my next question is, and that is like the most frequently asked question, sir, what is the importance of difference between AS and Ind AS? So please, Vatsal sir, guide our students for that. फ्रेंड्स, बेसिकली ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक नॉर्मल क्वेश्चन है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AS एंड Ind AS. तो मुझे पूछने दो कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो था ना, वो एक जस्ट एक स्टार्टिंग वर्जन था. वो आपका एक स्कूलिंग का एक प्राइमरी लेवल जैसा था. इंडियन AS इज टोटली कन्वर्ज्ड IFRS, यू नो वेरी वेल. एक अकाउंटिंग की ऐसी लैंग्वेज जो पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करता है, एंड देयर आर वेरियस डिफरेंसेस एंड इवन देयर आर सम कार्व इन एंड कार्व आउट्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स में जब क्लास में हम जब पढ़ाते हैं तो वो लोग डिफरेंसेस एंड कार्व इन एंड कार्व आउट को सेम समझ लेते हैं. फ्रेंड्स, कार्व इन एंड कार्व आउट एंड डिफरेंसेस वो कुछ अलग बात है, वो आपको समझना चाहिए. IFRS को अडॉप्ट करने के बाद हमने इंडिया की इकोनॉमी को कंसीडर करके जो चेंजेस की है, हाँ, वो चेंजेस की वजह से अगर कई बार हमने IFRS का वायोलेशन भी किया है एंड कई बार हमने IFRS के जो ऑप्शंस थे उसको सिलेक्ट किया है, तो सिंपल आपके डिफरेंस एंड कार्व इन एंड कार्व आउट कुछ अलग है. तो ये आपके लिए कब काम का है? आपको प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आता है, आपको प्रॉपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आता है, तभी आप उसको डिफरेंस कुछ कोरिलेट कर पाओगे. राहुल सर, अगर आप उसमें कुछ ऐड ऑन करो तो. Guys, it's very simple. I would rather tell you. First of all, through this channel, I would like to tell you is that students don't like AS. That's what I've always observed as far as inter comes, because उनको practical topics बहुत अच्छे लगते हैं. And I have fun, बहुत साल हो गए मैंने अभी IPCC पढ़ाया नहीं है, but it was fun teaching PPI. It was fun teaching internal reconstruction. It was such a great fun. But practically PPI देखा कभी आपने, या इंटरनल रिको कौन से कंपनी का लास्ट टाइम आपने प्रैक्टिकली देखा था? सो गाइस, सबसे पहले तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लो, AS पढ़ो, एंड देन यू कैन कम टू Ind AS. बट Nauka, I'll answer your question very particularly कि what is the difference between AS and Ind AS? AS is very rigid, I'm from Mumbai. अगर आप लोग मुंबई से तो जान पाओगे. Now if I ask you कि मुझे अंधेरी जाना है, I'm at बोरीवली, तो AS हमें कहता है कि सर बिल्डिंग के नीचे उतरो, रिक्शा पकड़ो, बोरीवली स्टेशन जाओ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाओ और अंधेरी का ट्रेन पकड़ो और अंधेरी लेफ्ट साइड पे आएगा, वहां पे उतर जाओ. बट Ind AS कहता है कि आप बोरीवली हो,
आपके राइट हैंड साइड पे 12 किलोमीटर पे अंधेरी आएगा। अब आप ट्रेन से जाओ, अब आप टैक्सी से जाओ, अब आप रिक्शा से जाओ, वो इंड एस नहीं कहता है। AS is very rigid, whereas Ind AS gives lot of flexibility. It leaves lot of things to you. And students, that is where final mein we have to grow. You know, when I used to teach in AS, it sounds redundant, but I used to tell them कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ही करना है। अब जब हम Ind AS कराते तो मैं कहता हूँ कि ऐसा कर सकते हैं। So students should have the capacity to stand up in the classroom and ask me कि सर हम ऐसा कर सकते कि नहीं? There are alternative treatments possible. And you know, there's one word जो मैं कहता हूँ कि आपके खून में घुस जाना चाहिए. This is my word which I tell in the classroom. Substance over form. यहाँ पे ना मेरे को एक बहुत छोटा सा एक जोक याद आ रहा है. Just last month, I wanted a water bottle, and I told my mom कि I need a water bottle. Now for my mom, I'm still a school-going child. तो मेरी mom है ना मार्केट जाके एक water bottle लेके आई, जिसपे पता है हम लोग स्कूल में वो एक पाइप वाला आता था and used to drink water with that. So I told my mom कि mom अब मैं थोड़ा एक बड़ा फैकल्टी बन गया हूँ, थोड़ा ब्रांड है, लोग देखते हैं मुझे, अगर ये बॉटल मैं क्लास में लेके गया तो कैसा लगेगा? तो then my mom said, Rahul, then it is up to you. Now I went to a store, I got a Nike brand का water bottle, it costed me 1,000 rupees, and my mom got a water bottle which costed 100 rupees. At the end, when I told her, see mom, this is the bottle, she told me a very nice thing. Rahul, क्या था इसके अंदर? I said पानी. And mom told कि वो 100 रुपए के बॉटल के अंदर भी क्या आ रहा था? पानी. Substance over form is more important. So यहाँ पे importance branding का नहीं होगा, rigidity नहीं होगा. Ind AS will be more flexible, and that is why we say कि you have to, you know, get into the subject and try to understand alternative treatments. But Vatsal sir ने बहुत rightly कहा है कि AS is a base level, primary level. स्टूडेंट को बहुत ऐसा फीलिंग आता है IPCC पास हो गया, फाइनल तो अब हो ही जाएगा, बट लेट मी टेल यू IPCC यहाँ पे है, फाइनल मेरा हाथ देखो यहाँ पे. सो यू नो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट. नौका, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. मैं आपके बेस लेवल पे रख रहा हूँ, इंटरनल में हम लोग जाएंगे अगर नौका के पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट के लिए तो. ठीक है, let's take the next question. 100% sir. But yes, I think मुझे लगता है कि इतने बड़े एग्जांपल्स के साथ स्टूडेंट के माइंडसेट काफी चेंज हो रहे होंगे, उनको काफी क्लैरिफिकेशन मिल रहा होगा. So that's a great thing. Thank you. Let's move on the further question. That is a question number 3. That question is, how much time does a student require on an average to study this particular subject? So Rahul sir, please tell. It varies from professor to professor, but according to me, guys, FR is paper 1 and group 1 में सबसे largest paper. In Mumbai, क्योंकि सब कुछ बहुत fast track पे चलता है, लोग first lecture attend करने आते हैं और सबसे पहले ये पूछते हैं कि portion कब खत्म होगा. But इतना pressure होने के बाद भी I take approximately 250 hours to 300 hours approximately to complete that paper, to be very frank. और वो भी मुंबई के एरिया में मैं बोल रहा हूँ. अगर मुझे लिबर्टी मिल जाए, बच्चे मेरे साथ आराम से थोड़े रहे, जो शायद उनका कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी रूड एट टाइम्स, थोड़ा डांट देता हूँ क्लास में लोगों को, तो 300 मिनिमम आवर्स इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट FR. FR इज वास्ट. मतलब ग्रुप 1 में अगर सबसे कोई यू नो काइंड ऑफ हम लोग कहते हैं ना कि सौतेला वाला व्यवहार हुआ है ना, तो वो FR के साथ है. ICI ने भी प्रूव किया है, बिकॉज दे हैव गॉट 6 बुक्स ऑफ स्टडी मटेरियल गिवन टू देम. एंड यू नो उसके अगेंस्ट अगर बाकी सारे हम लोग पेपर देखेंगे तो 2 स्टडी मटेरियल में खत्म हो जाता है. तो FR के 6 बुक खुद ही दिखा देता है कि कितना लेंथी है ये. क्या कहते हो वत्सल सर? यस यस फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस को कंपेयर करो तो आई थिंक मुझे पता है हमारे तक ग्रुप 1 में हाईएस्ट जो चेंजेस है ना वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अच्छा आज की तारीख में तो सिलेबस तो भी थोड़ा उन लोगों ने कम किया है. जब न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था तो उन लोगों ने बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज था जो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी रखा था और एज पर इंड AS भी रखा था. एंड उसमें सबसे बड़ा चैप्टर लाइक आप कंसोलिडेशन चेक करो तो एज पर AS भी पढ़ते थे 21, 23, 27 एंड इंड AS भी रखे थे. और यस, ICI ने कुछ करेक्टिव स्टेप्स लिए तो भी थोड़ा सिलेबस कम किया. एंड सिलेबस कम होने के बाद भी सर ने वैसे बोला 6 मॉड्यूल्स, एंड 6 मॉड्यूल्स में से भी सबसे मेन वेटेज चेक करो तो कंसोलिडेशन, आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये 3 हाईएस्ट वेटेज वाले. फ्रेंड्स, सिलेबस बहुत बड़ा है, उसको जितना डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहते हो वैसे कर सकते हो.
बहुत सारे बड़े बड़े ऑथर्स की बुक भी इतनी वॉल्यूमियस है कि उसको जितना एक्सप्लेन आपको क्लास में बोलना है कर, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आपको वो सिलेबस को खत्म करना है, इट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 250 to 300 आवर्स, एंड इफ यू वांट टू स्पीक ऑन द सब्जेक्ट यू कैन स्पीक मोर देन 600 आवर्स। डबल भी अगर आपको बोलना है तो बोल सकते हो, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं, राइट सर? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मतलब मेरे ख्याल से दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में ये ट्रेंड है कि ये लोग 8-8 महीने एक पेपर चला लेता है। इसलिए मैंने जोक मारा था कि मुंबई में लोग पहला लेक्चर अटेंड करते बोलते हैं पोर्शन कब खत्म करोगे। 300 आवर्स बेयर मिनिमम, यू आर राइट एब्सोल्युटली वत्सल सर। और 600 घंटे कोई दे दे तो मजा आ जाए अपने को पढ़ाने के लिए। यस यस। बट आई गेस फिर हमारे बॉसेस का प्रेशर हम पे ज्यादा होगा कि क्या कर रहे हो क्लास में। Yes, Daukat, let's take the next question here. Yes, sir. Sir, the next question, and that is the most frequently asked question, is there any advantage or says importance of studying FR at the early stage? So please, Vatsal sir and Rahul sir both, please guide students for that. फ्रेंड्स मुझे पूछो तो सीए फाइनल की प्रिपरेशन है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ इंटर खत्म होने के बाद 3 साल मिलते हैं तो वो लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हम लास्ट के 1 या 1.5 साल में कुछ ऑनलाइन लेक्चर परचेस करके हम उसको खत्म कर देंगे। पर फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट ने सोच समझ के आपको टाइम दिया है, 3 साल दिए, तो आई थिंक उसको यूटिलाइज करना चाहिए। एंड मुझे पूछो तो वैसे सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में खत्म कर देना चाहिए जहां पे अमेंडमेंट थोड़ा कम आने वाला है, एंड दैट इज द बेस्ट एग्जांपल इज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नो डाउट लास्ट 2 अटेम्प्ट से एक आध इंडेस नया ऐड हो रहा है, पर वो आराम से मैनेज कर पाओगे। लाइक दिस ईयर फ्रॉम द May 20 अटेम्प्ट जो एक्चुअली जुलाई अगस्त में गया, इंडेस 116 आया है, पर कहना चाहिए इंडेस 116 खत्म करना इट्स अ गेम ऑफ 15 आवर्स to 20 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। तो फ्रेंड्स आपको एफआर फर्स्ट ईयर में ही खत्म कर देना चाहिए, जो आपको आपके आर्टिकलशिप में भी हेल्प करेगा। जब कोई भी क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो, अगर वो क्लाइंट इंडेस एप्लीकेबल है तो आपको आर्टिकलशिप में भी ये बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा ऑडिट करने के लिए भी। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर में एफआर खत्म कर दो, बाकी के 2 साल में आपको जो सब्जेक्ट खत्म करना है वो कर सकते हो। एंड लास्ट में मुझे पूछो, अगर एक बार एफआर आपका हो गया है ना तो वो रिवीजन में इतना टाइम नहीं लेगा, बिकॉज एफआर पूरा एक बार ब्लड में चला जाना चाहिए। एक बार ब्लड में चला गया कोई उसको निकालने वाला नहीं। Absolutely perfect, Vatsal sir. मतलब I liked one thing that you said कि अगर ICAI ने 3 साल दिए तो कुछ सोच के दिए। Yes. Now that is a wonderful thing. मतलब मैं ये कॉपी कर लूंगा आपका, मैं आपको लाइव बोल रहा हूँ ये स्टेटमेंट कि मैं क्लास में यूज करूंगा कि 3 साल अगर दिए तो कुछ सोच समझ के दिए। Yes, yes. एंड यस वत्सल सर, आई डू द सेम थिंग। अगर बच्चा मेरे पास आता है कि सर कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करूं, तो आई ऑलवेज से एफआर या एसएफएम, पर्टिकुलरली इन ग्रुप 1, बिकॉज यू नो एफआर सबसे पहले एक तो इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, it takes a little bit of a time to complete, and second thing I guess ki when they do FR with classes and then they go for articleship together with that, that's an added advantage. Yes. You know, I was teaching Indes 116 just 2 weeks ago to one of my batch, and they said they have done this in their offices and they loved it. So they can match the practical aspect with the classroom coaching, जो पहले उनको लगता था नहीं बहुत थियोरिटिकल है, बट नहीं आजकल ऐसा नहीं है। जैसे आपने पहले मेरे ख्याल से कहा ये सेशन में that you ask them to keep a practical balance sheet, corporate balance sheet साथ में कि भाई क्या हो रहा है। Yes. That is how we should be actually teaching also ना, कि हमें उनको दिखाना है प्रैक्टिकली क्या है। और इसीलिए मैंने आपको कहा वो पीपीआई जैसे हम सब्जेक्ट पढ़ा लेते थे आईपीसीसी में, क्या था वो, मतलब आई डोंट नो, ये कभी प्रैक्टिकली देखा ही नहीं होगा। Never. Today when we teach Ind AS, and if the student has the advantage of being in a corporate organization where Ind AS is applied, then it's a boom. First paper to start is, you know, kind of FR, and I would rather say complete your IPCC, take a month break or 2 months of break, and please join the classes and start with FR or SFM. But SFM is very simple, छोटा सा subject है, but FR is lovely. So FR जल्दी start करना चाहिए। Yes. So यहाँ पे दोनों फैकल्टी ने बोला उस हिसाब से भाई एफआर अर्ली स्टेज में चालू करना वो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस पॉइंट and following, and you have to follow this thing, so it may help to cover more marks for in your examination. Okay, so let's move to next question, and the question is, sir, you know, there is a particular mindset for the subject. So what is the mindset of this particular subject, and please guide them for changing the rigid mindset for this FR. So Vatsal sir, I'll take that question. Yes.
Rigid mindset, I would tell you, because IPCC people don't like AS. मतलब मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जो बोलना नहीं चाहिए बट फाइनल में आ गए AS को ऑप्शन में रख के, and it sounds fun. How can you leave a chapter in option and still come to final? And Vatsal sir, अगर आपको पता हो तो old course में FR old course में there were two chapters which were very important. One was amalgamation and one was CFS. CFS, yes sir. And Vatsal sir, believe me, there were students who used to complete CA, chartered बन जाते थे और CFS नहीं करते थे. So guys, मतलब मेरे का तो बहुत फन वाला काम है. मतलब हम चार्टेड बन गए और हमारा बॉस कह रहा है कि चल भाई राहुल कंसोलिडेशन करते हैं. नहीं सर, वो चैप्टर तो मैंने ऑप्शन में छोड़ा था. Guys, give up this mindset that AS is boring. लोगों को पता नहीं AS क्यों बोरिंग लगता है. शायद fault lies with us also, the faculty also, to be very fair. Because हम IPCC में क्या करते थे पता है कि थोड़ा बेस मॉडल दे देते थे, 4-5 क्वेश्चन दे देते थे, यही आएगा एग्जाम में. एंड पीपल लाइक मी जो हम क्रैश कोर्स लेते हैं ना, तो वहां पे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो भाई ये पढ़ के जा, तेरे को पास होने का है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, फॉल्ट लाइज विद अस आल्सो. बट मैं तो सिखाने के पहले जैसे हमारे एडवर्टाइजमेंट्स में आता है ना कि दिस काइंड ऑफ स्टंट्स आर ओनली परफॉर्म बाय काइंड ऑफ पीपल हु आर ट्रेन्ड, मैं उनको पहले बोल देता हूँ कि भाई तुम क्रैश कोर्स कर लो मेरे साथ, बट यू हैव टू आफ्टर यू गिव योर एग्जामिनेशन ना AS का मॉड्यूल लो और प्लीज पढ़ो उसे. हमारे मुंबई की आधी लाइफ लोकल ट्रेन में जाती है. I tell them, please have the book of AS carry in your local trains and read them. This is a very good practical topic. और अगर चार्टेड अकाउंटेंट बनना है और अगर इंड AS नहीं आता है तो क्या आता है? You have to be very, very practical towards this subject. Yeah, I do agree. It's always there in all the subjects that some standards may be boring and some standards may be exciting. People, you love number work, but you don't like theory work. But theory has to be understood to understand how to apply the numbers. How can you play a number game without understanding the theory and concept as to how we are doing it? In fact, while doing Ind AS and while doing FR, your approach should be why, WHY. If a professor tells you कि ऐसा करना है, then get up in the classroom and ask a professor ऐसा क्यों करना है, कहाँ पे लिखा है और ये क्यों लिखा होगा. That should be your approach. So FR, please change your mindset. It's a lovely paper. I'm blessed to have my students. You can ask my students. They love coming to my classes, and we jump, we rock. हम लोग धमाल करते हैं. हाँ, 2-3 थोड़े स्टैंडर्ड है तो मैं उनको बोलता हूँ सो जाओ, चलो मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग एक कान से डालो एक कान से निकालो, something like that. But lease and all this thing, revenue recognition 115, Vatsal sir. Yes sir. और तुम्हारा फेवरेट टॉपिक्स तो है यार अपना PPE एंड इंटेंजिबल एसेट्स एंड वो सब तो है ना. वत्सल सर आप भी थोड़ा ऐड करो यार, इनको बोलो कि FR के लिए माइंडसेट चेंज करे यार, सीरियसली. एक्चुअली सर मुझे पूछो तो वी आर द लकीस्ट फैकल्टी बिकॉज हम दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली इंडिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थियरी प्लस प्रैक्टिकल. परफेक्ट. एंड इफ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थियरी प्लस प्रैक्टिकल तो हम दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं. फ्रेंड्स, एक्चुअली FR इज नॉट अ डिफिकल्ट. लाइक सर ने जैसा बोला था सब्सटेंस ओवर फॉर्म, जब FR आपका टोटली इंडेक्स बेस्ड है, जब इट मे बी पॉसिबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था तो हम बोल देते थे आपको ये करना है, सोचो मत, ये लिखा है तो करना है. बट इंडेक्स इज टोटली आपका कंसेप्चुअल वाला गेम है. एंड जब भी CA की स्टडी कर रहे हो तो इट्स अज्यूम कि आपको सब कुछ स्टडी जो करना है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ही करना है. इट इज नॉट अ डिफिकल्ट. अगर आपने प्रॉपर तरीके से अगर उसके हर एक इंडेक्स के कंसेप्ट देख लिए तो इट्स एन ईजी. एंड हर एक इंडेक्स के टॉपिक से ना वो कहीं ना कहीं आपके कोरिलेट हो जाते हैं. लाइक अगर आपने इंडेक्स 16 में अगर उसके PPE में लाइक टॉपिक्स जो कर लिया रिकॉग्निशन वाले, तो सेम टॉपिक्स आपके रिपीट होने वाला है. लाइक इंडेक्स 38 में जाओ, इंडेक्स 40 में जाओ, इंटेंजिबल एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. ये बल्कि है, पर उसको अगर स्मार्ट स्टडी करो ना तो उसको छोटा बना सकते हो. जो रिपीटेड टॉपिक है उसको इग्नोर करो, क्योंकि आप PPE में भी सेम चीज पढ़ने वाले हो. इंटेंजिबल आपको क्या करना है, यहाँ पे कंसेप्ट इतना ही देखना है, पर जो भी कंसेप्ट खत्म करो उसके रिलेटेड प्रैक्टिकल साथ में सॉल्व करो. अगर सिर्फ थियरी पढ़ते रहोगे तो बोर हो जाओगे. और इसलिए हम क्लास में आपको क्या करवा दे, जैसे एक कंसेप्ट खत्म होता है उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है हमारी बुक में, मॉड्यूल में, पास्ट पेपर्स, RTP हम साथ में सॉल्व करवा देते हैं. और एक बार आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस रहेगा. सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपका माइंड को अप्लाई करना है. इट्स नॉट लाइक दैट थियरी लगा दो, वहां पे जाके पॉइंट
मार्क मिलता है, ऐसा नहीं। So I must say जितने स्टूडेंट्स ये सेशन देख रहे हैं उनका माइंडसेट तो चेंज होने ही वाला है कि ये सब्जेक्ट आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, ठीक है? चेंज करो अपना माइंडसेट. Now sir, moving ahead, the next question, and the question is for Vatsal sir. Sir, please guide the students for the sequence of the chapters which they have to follow. Yes, actually madam, that is the most important thing. जब मैं एकेडमिक्स की बात करूं, नो डाउट, जब सब्जेक्ट सीखते हैं तो एक भी इंडेक्स को इग्नोर नहीं करना है. और जब लास्ट 6 और 7 मंथ्स बचे जहां पे हम एग्जाम के लिए मेहनत करते हैं, तो वहां पे अगर आपको जो चीज आता है पर अगर वो चीज आईसीए अगर पूछता ही नहीं है तो मैं उसको इग्नोर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर उसका थोड़ा कम फोकस करो. पर अगर आपको जो चीज नहीं आता है, एंड अगर मैं आईसीए का पास्ट पेपर का अगर मैं वेटेज देखूं, एंड अगर मेरा 60 to 70% पेपर अगर वही चैप्टर्स में से है, तो 100% फ्रेंड्स आपको नहीं आता है तो भी ये 6 महीने में फुल प्रिपरेशन करके वो टॉपिक्स प्रिपेयर करना पड़ेगा. एफआर पेपर अगर मुझे पहले 3 चैप्टर के नाम बोलो, इतने चैप्टर्स तो आपको आना ही चाहिए, उसके बाद सब कुछ सेकंड स्टेज पे आता है. एंड मैं फर्स्ट लेवल पर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है, आई थिंक मुझे पूछो, आपको जो डर लगता है ना, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लास्ट वाले टॉपिक्स में, अकाउंटिंग, एम्बेडेड डेरिवेटिव. आपको आगे वाला तो आता है, मुझे पता है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला. पर फ्रेंड्स आप चेक तो करो, मुझे याद है वहां तक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला जो चैप्टर है ना, वो ओल्ड सिलेबस में भी था, इंडेस 32, 107 एंड 109, एंड न्यू सिलेबस में तो पहले से है. आप ओल्ड सिलेबस के पेपर से ये लास्ट नवंबर 19 तक के फ्रेंड्स पेपर निकाल के देखो, ये लोग मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाले ही पूछते हैं. एंड वो टॉपिक तो आपको आता है, तो क्यों डरते हो उससे? मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, उन लोगों ने एक बार आपको डेरिवेटिव्स के हेज अकाउंटिंग के भी क्वेश्चन पूछ के रखे, पर इग्नोर नहीं करना है. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑन एन एवरेज 15 to 20 मार्क्स के आपका पेपर में होता है. सेकंड चैप्टर दैट इज नथिंग बट फ्रेंड्स आपका कंसोलिडेशन के भी क्वेश्चन ये लोग पूछते ही पूछते हैं. इवन इन लोगों ने जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस के हिसाब से कंसोलिडेशन था प्लस इंडेस के हिसाब से था, तो एक पेपर तो ऐसा था जहां पे उन लोगों ने दोनों के हिसाब से पूछ लिया था. आज की तारीख में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. थर्ड प्रायोरिटी इज दैट इज नथिंग बट बिजनेस कॉम्बिनेशन. ये 3 चैप्टर फर्स्ट में ग्रुप में रखता हूं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंसोलिडेशन एंड द बिजनेस कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट अगर मूव ऑन करें तो आपको एक शेयर बेस्ड पेमेंट भी मोस्टली ये लोग हर एक एग्जाम के पेपर में वो होता ही है, तो शेयर बेस्ड पेमेंट भी आपको परफेक्ट तरीके से आना चाहिए. दैट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट चैप्टर. एंड उसके बाद इंडेस. अब मैं जब फाइनल वालों को मिलता हूं तो आप कौन से इंडेस के पीछे भागते हो जो आपके लिए नए वाले हैं, लाइक आपने उसके नाम इंटर लेवल पर नहीं सुना था. एग्रीकल्चर है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट है, पर चेक करो पीछे उन लोगों ने इसके क्वेश्चन पूछे हैं. अगर पूछा है तो उसके पीछे मेहनत करो. कोई भी इंडेस इग्नोर नहीं कर सकते, ये इंस्टीट्यूट है. इंडेस 2 इन्वेंट्री का भी ये लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं. क्लियर? पर यस, जब प्रायोरिटी की बात है तो फर्स्ट लेवल पर आपको 3 चैप्टर आ जाना चाहिए, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंसोलिडेशन एंड द बिजनेस कॉम्बिनेशन. राहुल सर, अगर आप कुछ ऐड करो तो इसमें. I would love whatever you said, guys. Sir ne kaha exactly was on the topic. But as far as sequence is concerned, I will just go a little bit in detail. In the terminologies, you should start with standards on assets. Because Vatsal sir ne pehle wale part mein kaha tha, Ind AS 16, Ind AS 40, Ind AS 38, they are all relating to assets. They are all relating to assets. Now, when we are talking about everything relating to assets only, then everything is very similar. मतलब हम लोग को लगता है हम 3 स्टैंडर्ड पढ़ रहे, पर वो 3 स्टैंडर्ड नहीं, वो एक ही स्टैंडर्ड लेके हम पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं. सो यू नो, क्लबिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टैंडर्ड्स को क्लब करो, कि सारे असेट्स के स्टैंडर्ड पहले कर लो, फिर यू नो बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन को साथ में कर लो 103 के बाद 110, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन हो जाते हैं. एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो सर ने स्ट्रेस कर ही दिया, यू कैन नॉट लीव इट एज ऑप्शन. And sir has stressed it 2 times. I'll stress it one more time. Nothing can be left as option. मेरा तो कॉलेज लेवल से एक एक्सपीरियंस है कि मैं जो चीज को ऑप्शन छोड़ के जाता था वो क्वेश्चन नंबर 1 पे दिखता था. तो आजकल अगर बच्चा मुझे कहता है कि सर मैं ये ऑप्शन छोड़ दूं, तो मैं उसको कहता हूँ बेटा कल क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, चॉइस इज योर्स. एंड एक चीज पूछना छोड़ दो गाइज, आप अभी फाइनल में आ गए हो कि मैं क्या करके जाऊं और क्या नहीं करके जाऊं. दैट इनफैक्ट इरिटेट्स मी. बच्चा मुझे ऐसा कुछ पूछता ना, तो मैं पूरा एफआर का एक इंडेक्स का पिक्चर निकालता हूँ और उसको भेज देता हूँ कि ले ये इंपॉर्टेंट है.
बिकॉज एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. इन्वेंट्री पे भी क्वेश्चन आया यार. इन्वेंट्री तो आईपीसी से पढ़ रहे हो ना, मतलब कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, तो मेरे ख्याल से बच्चे को आता होगा. बट इस पे भी फाइनल में क्वेश्चन आया है. यू कांट लीव एनीथिंग एज ऑप्शन. सो गाइस, क्लब करना सीखो एंड यू नो फॉलो द फैकल्टी हुम यू आर डूइंग इट. आस्क हिम कि कौन से चैप्टर्स क्लब करे. और प्लीज ये 3 टॉपिक जैसे सर ने कहा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन, यू कैन नॉट लीव इट. एंड यू कैन नॉट लीव इट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो. परफेक्ट है. वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट वन. ओके, थैंक यू सर. आई थिंक स्टूडेंट्स को कौन सी सीक्वेंस फॉलो करनी है चैप्टर्स के लिए वो अभी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. So for moving further, and this is like the most likeable questions of students, and that is, sir, which standards are most important, and so please provide important standards to our students. Nauka, that question is already answered by Vatsal sir and me, both of them. I'll just summarize that question once again. Okay. Financial instruments, business combination, and consolidation of financial statements. ये 3, मतलब यू नो हम लोग अपने हिंदी में कहते हैं ये 3 एक तरफ, बाकी के 30 एक तरफ. तो ये 3 एक 50 मार्क का पेपर बन गया, बाकी के 30 से बाकी का 50 मार्क का पेपर बन जाएगा. लाइक बिजनेस कॉम्बिनेशन, वत्सल सर मैं खाली ऐड कर दूंगा, लोग बहुत उसको अंडररेट करते थे. एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल द स्टूडेंट्स, बिकॉज जब ये इंडेक्स चालू हुआ तो पहले 2 पेपर में 5-5 मार्क के क्वेश्चन आए खाली. और अभी लास्ट पेपर में पूरा उन्होंने कंपलसरी क्वेश्चन पूरा 103 के छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स को लेके एक बड़ा क्वेश्चन वाज आल्सो अकॉर्डिंग टू द कंसोलिडेशन आल्सो, बट बिजनेस कॉम्बिनेशन ज्यादा था. तो डोंट अंडर एस्टिमेट एनीथिंग. ये 3 टॉपिक्स प्लीज, यू कैन नॉट लीव इट. यू कैन नॉट लीव एनीथिंग एज ऑप्शन, बट अगर ये 3 छोड़ दिया तो पाप हो जाएगा. एंड यू नो आई डोंट नो भगवान क्या करेंगे फिर आपके साथ. क्या कहते हो वत्सल सर? सो इट्स ऑलरेडी समराइज्ड आई गेस, है ना? यस. चलिए मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मतलब जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया था, तो और अच्छे तरीके से बच्चों को पता चल गया कि कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा उनको अच्छे से फॉलो करना है. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि सर ऐसा बोला जाता है कि आप 300 दिन मेहनत करो, 30 घंटे मेहनत करो, 3 दिन मेहनत करो, जो भी करो, पर इम्पोर्टेंट वो ही होता है जब आप 3 घंटे एग्जाम के लिए बैठे हो और उस टाइम पे जो प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, जो आपका नॉलेज है उसको कैसे अप्लाई करते हो, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो सर प्लीज बताइए कि स्टूडेंट को प्रेजेंट कैसे करना है, पेपर कैसे देना है सर. यस मैडम. फ्रेंड्स, अगर आपका वहां पे 3 घंटे अगर आपका दिमाग चला है ना, वहां पे प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके आए, तो एफआर इज अ सब्जेक्ट जहां पे आप 90+ स्कोर भी कर सकते हो. पर फ्रेंड्स, घर पे से आपको पता, जब एग्जाम देने के लिए जाओ उससे पहले आपका ये माइंडसेट क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर ये पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन मुझे दिखा तो वहां पे मैं जाके ये तो अटेंड करने वाला हूं. आपको पेपर से पहले पता चल जाना चाहिए कंसोलिडेशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होने ही वाला है. जस्ट ओपन द पेपर, जैसे ही दिखा कि इस पर्टिकुलर में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो बस उसको तो लिखना ही है, कुछ भी हो जाए. फ्रेंड्स, वहां पे जाके ये सोचना नहीं है, क्वेश्चन को सिलेक्शन करने का टाइम नहीं है. घर से ही हमको पता है इतने चैप्टर तो फिक्स है, अगर दिखा तो मैं उसको अटेंड करने वाला. सेकंड चीज, अगर मैं प्रॉपर टॉपिक प्रेजेंटेशन पर आऊं, मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पेपर जब देखता हूं, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का आंसर है वो डायरेक्टली जस्ट एक न्यूमेरिकल फिगर रख के स्टार्ट कर देते हैं. लाइक इफ यू आस्क मी, अगर आपको कोई अर्निंग पर शेयर के इम्पेयरमेंट का अगर कोई क्वेश्चन पूछा, तो कोई भी क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर डिपेंडेंट होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो टॉपिक का थियरी प्रेजेंट करना है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मॉड्यूल की प्रॉपर लैंग्वेज लिखो, बट अगर हर एक फैकल्टीज आपको क्लास में वो पर्टिकुलर टॉपिक कुछ समरी नोट्स आपको कुछ क्लास में लिखवाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो टॉपिक की समरी नोट्स, एंड उसके बाद आपका आंसर प्रेजेंट हो जाना चाहिए. एंड पेपर चेकर को आंसर तुरंत दिखना चाहिए, एंड उसके लिए जो आपका फाइनल आंसर है फ्रेंड्स उसको हाईलाइट करने का आदत डालो. कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली न्यूमेरिकल फिगर रख के स्टार्ट नहीं करना है, वो टॉपिक के रिलेटेड थियरी लिखना है. उसके बाद ट्राई टू फिनिश पेपर इन 2.5 hours. I understand it is difficult, but try to do this, because अगर पेपर थोड़ा जल्दी खत्म हुआ ना तो पेपर को थोड़ा डेकोरेट कर पाओगे. लाइक जर्नल एंट्रीज कुछ ड्रॉ किया है तो उसके कॉलम्स ड्रॉ कर पाओगे, बैलेंस शीट के थोड़े कॉलम ड्रॉ कर पाओगे, ये सब कुछ कर पाओगे. कोई टोटल बॉटल अगर कुछ गलत निकला है तो उसको भी मैनेज कर पाओगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फिनिश योर पेपर इन 2.5 hours, एंड वो फ्रेंड्स तभी होता है, उसके लिए आपको ICAI के एग्जाम से पहले आपको घर पे
मिनिमम वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 3 पेपर लिखे। एंड मेरा नॉर्मल रूल है, मैं क्लास में आपको बहुत बार बोलता हूँ, 3 बार रिहर्सल करके अगर यहाँ पे नहीं गए तो आईसीआई का एक सिंपल रूल है, वहां पे जाके 3 बार लिखना पड़ेगा। वहां पे जाके 3 बार लिखना मतलब वो एवरी 6 मंथ्स पर आता है, लिटिल बिट डिफिकल्ट। क्लियर? तो फ्रेंड्स समझ के जाना। राहुल सर, अगर आप इसमें थोड़ा कुछ ऐड करो तो। मैं ये ऐड करूंगा कि लिटिल बिट डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यस, बिकॉज उन लोग आईसीआई के लिए तो 2 ही महीने हैं, मई और नवंबर। एक पोइट्री आती है मई के बाद नवंबर, नवंबर के बाद मई, और कोई महीने ही नहीं आते। गाइस, फर्स्ट अटेम्प्ट इज योर लास्ट अटेम्प्ट, गिव एवरीथिंग इनटू द फर्स्ट अटेम्प्ट। As far as the presentation of answer is concerned, I would like to add that 1, 2, 3. 1, you should always quote index number. 2, you should always quote the provision of the index. And 3 is the body of your answer. So वत्सल सर ने कहा कि न्यूमेरिकल से स्टार्ट नहीं करना। मैं कहता हूँ कि अगर वो आंसर असेट पे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो पहले लिखो इंडेक्स 16। सेकंड लिखो कि वो कौन से प्रोविजन को रिलेट करता है, और थर्ड उसका आंसर प्रेजेंट करो। मैं तो जब इंडेक्स चालू कराता हूँ वत्सल सर क्लास में, बहुत बच्चों जैसा फीलिंग आता है लोगों को, पर मैं पहले सारे इंडेक्स के नंबर्स बाय हार्ट कराता हूँ। यस। और मैं फर्स्ट वीक के एंड पे उनका टेस्ट भी लेता हूँ कि इंडेक्स 1 कौन सा है। मतलब आज ही माय वाइफ वाज लाफिंग व्हेन आई वाज टेकिंग ऑनलाइन लेक्चर टुडे। एक तेजस करके बंदा है, मैंने उसको लिटरली बेंच पे खड़ा रखवाया है, और इंडेक्स 1 से लेके अपना इंडेक्स 101 से लेके पूरा एंड तक मैंने उसे सब नंबर्स बुलवाए, तब जाके उसको बोला कि तू बैठ सकता है। बिकॉज आई डोंट लाइक अगर आप सीए एफआर पूरा कर लो और आपको इंडेक्स के नंबर्स ही याद है। यस। अभी असेट का टोटल करने जा रहे हैं लोग, पर इंडेक्स 16 है, वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, पता ही नहीं है। इंडेक्स 16 लिखो कि इट इज वैल्यूएशन प्रोसेस, कॉस्ट में क्या आ सकता है, एंड देन गो फॉर द वैल्यूएशन। रिमेंबर गाइस, 1, 2, 3 आई से 1 इंडेक्स का नंबर, 2 is the provision, and 3 is the body of the answer. Perfect. And सर ने जैसे ऐड कर दिया, I'll just stress it. सर ने कहा है तो मेरे को रिपीट करना है खाली उसे, प्लीज मॉक टेस्ट पेपर्स लिखो। मतलब एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट पेपर लिखना बहुत जरूरी है। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स वत्सल सर कि एक महीने पहले सारा रिविजन हो गया होना चाहिए, और लास्ट मंथ फॉर एग्जाम्पल अगर आप मई अटेम्प्ट दे रहे हो तो अप्रैल के महीने में आपको सिर्फ पेपर्स लिखना है। This is what we tell to our students, because otherwise does not make sense. वहां पे जाके आप पैनिक करोगे। So yes, please write your mock papers, guys. ठीक है? Too good. Okay, thank you sir। मतलब ये बोल सकते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करनी है जब आप आईसीआई का पेपर देने जा रहे हो उससे पहले, और ये चीज फॉलो करनी है जो सर ने बोला है कि आप कैसे अपने पेपर में क्वेश्चन को प्रेजेंट, आंसर को प्रेजेंट करोगे। I hope you all are understanding all these points. And now moving further, the next question is, sir, it's about ICAI study materials. That how much important that ICAI study material for students for the subject? Rahul sir. I feel ICAI study material is very important. That should be the base for every study material. I have seen a lot of professors saying मेरे book से question आया था, मैंने ये क्वेश्चन बनाया था। मेरा बुक है, मैंने पहले ऊपर लिख के रखा है, इट इज कंपाइल्ड बाय राहुल मलकान। मैंने थोड़े मेहनत की होगी, ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत नहीं की होगी, बट स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में मैंने मेहनत की होगी जो बेस समझाने के लिए, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज आईसीआई। पास्ट पेपर्स, पास्ट आरटीपीज हैव टू बी कवर्ड अप। करंट स्टडी मटेरियल में यू कैन नॉट लीव एनीथिंग। यू आर नॉट गोइंग टू गिव पेपर सेट बाय राहुल मलकान, यू आर गोइंग टू गिव पेपर सेट बाय ICAI. After all, ICAI is the board. We should respect the board. And I am telling you guys, they have done a very fabulous work. मतलब I will not mince my word right now. 10 साल पहले एक जमाना था जब स्टूडेंट कहता था कि सर ये ICAI का बुक है, क्या करे, तो हम उसे कहते थे बेटा ऊपर रख दे, जब तू पास हो जाएगा तो वो सिंह चने वाले को बेच के आना, उसमें सिंह चना आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं है। But when I look at the material today, it's fabulous. I'm really proud of ICAI. And as far as FR is concerned, 6 modules बनाना fabulous. मतलब सबसे पहला कवरेज तो आपका पूरा ICAI का बुक होना चाहिए। दिस इज नॉट रिलेटिंग टू माय सब्जेक्ट, मैं थोड़ा सब्जेक्ट को मतलब आगे भी लेके जाता हूँ इन दैट सेंस। अपना कवरेज नहीं है, फिर भी मैं लोगों को कह रहा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट में आपको ICAI को रेफर करना ही है। भले कोई भी प्रोफेसर बोल दे कि मेरा बुक इज द गॉड, आई विल टेल यू ICAI का बुक इज द गॉड। उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस ऐड करके काम कर रहे हो, इट्स गुड, बट ICAI हैज टू बी द बेस।
What do you say, Vatsal sir? यस फ्रेंड्स, मुझे पूछो तो आईसीआई भगवत गीता है. एक भी क्वेश्चन आईसीआई का छोड़ के नहीं जा सकता. एंड फ्रेंड्स, ये आपका बेसिक्स ऑफ एजुकेशन याद करो. जब छोटे थे ना, तो आपके पेपर्स कहाँ से आते थे? आपके बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दिया था वहां से, कहना ही सबके बोर्ड में भी पेपर आए थे. तो सेम यहाँ से कुछ नया नहीं आने वाला है. अब बोलते हो पेपर डिफिकल्ट था, पर यस, मुझे स्पेसिफिकली बोलना है, इंडिया का मॉड्यूल इन लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है. हाँ, आपको कई बार मिलेंगे क्वेश्चंस जो डायरेक्टली बहुत सारे फॉरेन कोर्सेज जहाँ पे आईएफआरएस है उसके क्वेश्चंस डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किए यहाँ पे. ऑब्वियसली क्योंकि वो यहाँ पे काम के हैं तो उन लोगों ने कॉपी पेस्ट किया, उसमें कुछ गलत नहीं किया है. मॉड्यूल बहुत अच्छा बनाया सर ने, जैसे बोला 6 मॉड्यूल्स, ईच एंड एवरी इंडियस प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया है. हर एक इंडियस में आप चेक करो, क्वेश्चंस भी अच्छे दिए हैं. फ्रेंड्स, ये जो आपका जो नया मॉड्यूल है जो अगस्त 2019 की एडिशन, यस, उसके पहले वाले मॉड्यूल में लाइक 2-3 इंडियस थे जहाँ पे क्वेश्चंस नहीं दिए थे, लाइक 41 थे, 113 थे. अब यस, यहाँ पे सब कुछ उन लोगों ने प्रॉपर कर दिया है. आईसीएआई का एक भी क्वेश्चन फ्रॉम द इंडियस 1 टू लास्ट वाला दैट इज इंडियस 113 तक, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं जा सकते, वो तो करके ही जाना. So just to sum up that ICI is भगवत गीता, ICI is God. मैंने इंग्लिश में गॉड कह दिया, सर ने अपने हिंदू गॉड्स की तरह से भगवत गीता कह दिया. भाई आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हो, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, परफेक्ट. चेक नेक्स्ट क्वेश्चंस अब. ओके, मैं सेम यही चीज बताने वाली थी, यही चीज को रिपीट करने वाली थी, बट सर ने बता दिया. सो भाई, आईसीएआई मटेरियल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. Now the next question and the last question and the important one, that sir, how practically FR will be helpful to people? So Rahul sir, please. Practically is the most important paper, I will tell you. AS मेरे को redundant लगता था, but Indias मेरे को बहुत practical लगता है. There was a time when I was supposed to, मतलब I take 2 subjects now का. I take FR and SFM both in CA final. And taking 2 subjects in CA final is always like bothersome, you know. तो हर एक टाइम एक क्वेश्चन आता है कि क्या छोड़ दे, FR सिखाना छोड़ दूं कि SFM सिखाना छोड़ दूं. तो एक बार एक रीजन आया था कि भाई राहुल FR छोड़ देते हैं, SFM अच्छा जा रहा है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही थी. बट देन ICI को अच्छा नहीं लगा मैं छोड़ रहा था, तो ICI ने कहा वो AS छोड़ देगा और हमें इंडेक्स कराना पड़ेगा. एंड दैट्स वेयर द इंटरेस्टिंग थिंग स्टार्ट्स नाउ. इट्स प्रैक्टिकली वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब जो कुछ भी मैं क्लास में सिखाता हूँ, आई कैन टेल द स्टूडेंट कि यही हो रहा है मार्केट में. सर ने कहा था कॉर्पोरेट बैलेंस शीट देखो हर एक चीज को मैच करके कि हम जो क्लास में बोलते हैं वो हो रहा है कि नहीं. नाउ इट्स नॉट लाइक अ स्कूल बुक, इट्स नॉट लाइक IPCC, इट्स नॉट लाइक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इट्स बिजनेस कॉम्बिनेशन, इट्स कंसोलिडेशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक चेंज मेरे को चाहिए कि ICI थोड़ा लेके आए. दिस इज अ रिक्वेस्ट टू ICI थ्रू योर चैनल नौका, is that let's have case studies in the paper. Yes. मतलब उन्होंने लॉ में इम्प्लीमेंट किया है, मेरे ख्याल से ये IDT में इम्प्लीमेंट किया है. आई वांट लाइक अ 20 मार्कर स्टार्टिंग क्वेश्चन, एक पूरा केस स्टडी बना दे पूरा. हमने को स्कूल में आता था, बच्चों को अच्छा भी लगता था. इंग्लिश में क्या कहते थे हम लोग उसे, कॉम्प्रीहेंशन. तो कॉम्प्रीहेंशन आता था और नीचे क्वेश्चन आते थे. दैट वाज माय फेवरेट, बिकॉज ऊपर पढ़ना है, नीचे आंसर देना है. तो भाई ऐसा कुछ कर लो ना, मतलब एक पूरा सा एक कॉर्पोरेट केस स्टडी बना लो, बैलेंस शीट दे दो, एंड ट्राई टेल देम टू एनालाइज इट, टेल देम टू अप्लाई सम स्टैंडर्ड्स इनटू इट, एंड दिस विल बी ब्यूटीफुल. आई गेस ICI is working because according to my knowledge ICI has called for a lot of practical people to give the case studies to them, and I guess it will be very soon. That's the future FR, जहाँ पे हम फैकल्टी के लिए भी बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा कि थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पढ़ाने हैं, सिर्फ उनको प्रैक्टिकली दिखाना है कि क्या चल रहा है मार्केट में. So that's where I think practically तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इस पे केस स्टडीज आ जाए तो धमाल हो जाए, है ना सर. फ्रेंड्स, अगर मैं इसमें थोड़ा एड ऑन करूं, आपका जो FR का जो सिलेबस है ना, वो आपको CA के लिए तो हेल्प करने वाला है. आगे अगर पहले स्टडी की बात करें, अगर फॉरेन कोर्सेज करना है तो उसमें आपके कहीं ना कहीं पे IFRS आएगा. कॉमर्स फील्ड में देखो तो सेम है, वहां पे भी आपको वहां पे हेल्प करेगा 100%. प्रैक्टिकल लाइफ के लिए याद करो, आज के आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, पर यस 100% नियर 5 to 10 years आई डाउट के वो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अबॉलिश कर दें. पर यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड धीरे धीरे करके चेंज करके उसको एग्जैक्टली इंडिया जैसे बना देंगे. उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम द 2016 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ये सब कुछ उन्होंने चेंज करना स्टार्ट कर दिया है. एंड
100% धीरे धीरे हर एक एंटिटीज के लिए अप्लाई हो जाएगा. एंड यू नो वेरी वेल, आज एक प्रैक्टिसिंग सीए फर्म फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडेस कोई भी क्लाइंट का है, उसके लिए जो फीस चार्ज करता है वो नॉर्मल आपके असाइनमेंट से है बहुत ज्यादा टाइम्स होती है. तो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इतना ही काम है. आपका एक भी मोमेंट आप जो यहाँ पे पढ़ रहे हो वो जरा सा भी वेस्ट नहीं होने वाला है. पर यस, रट्टा मत लगाओ. कंसेप्चुअल स्टडी करना, बाय हार्ट पढ़ना, तो ही वो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर पाओ. वत्सल सर ने एक बात है ना एकदम टिपिकल गुजराती जैसे कर दी कि आपका फीस ना बहुत हाई होने वाला है. सो मतलब गुजराती लोग एकदम पकड़ लेंगे. एंड आई वुड नॉट टेल यू ओनली गुजराती लोग, एवरीबडी वांट्स मनी. यू आर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सो गाइस प्रैक्टिकली प्लीज, है ना. तो बाद में फीस चार्ज करने में भी मजा आएगा एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद. Yes. What's it? I guess Nauka, this answers your questions. Yes or no? Yes, sir, 100%. I must say 500%. सर मैं इतना जानती हूँ कि ये जितने भी मेरे क्वेश्चंस थे, जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे, उसके बहुत ही पर्टिकुलर और बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन उनको मिले. तो ये जो पूरा सेशन रहा होगा, उनके जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उनका बहुत ही परफेक्ट सोल्यूशन मिला है. So thank you Rahul sir, thank you very much Vatsal sir for providing your precious time for our students. And I must say sir, last कोई भी मैसेज आपको देना हो हमारे स्टूडेंट के लिए. Vatsal sir. बस फ्रेंड्स, जल्दी से सीए बन जाओ. आगे की दुनिया बहुत मजा वाली है. पर ये लोग जो छोटे से तब से जब सब लोग उल्लू बना रहे हैं ना कि बस ये लेवल खत्म कर दो बाद में शांति है, ऐसा नहीं है. पर हाँ, मजा आएगा, चैलेंजिंग काम करने के लिए मिलेंगे. तो जल्दी से सीए बन जाओ. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ, नॉट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर लाइफ. Absolutely well put on. Because मेरे को तो 10th स्टैंडर्ड से डैड ने कहा बस ये हो जाए तो और आगे का सब कुछ हो जाएगा. फिर 12th आ गया, फिर सीए आ गया. Guys, join FR early. Study conceptually. Practically, it is very important. Once you become CA, as Vatsal sir wishes you that you should become CA very early, don't forget us. And if any other problems you have, you can directly get in touch with Navkar Digital App. I guess these guys are doing wonderful work helping you out. Thank you, Navka, and thank you to Navkar Digital Institute also. Yes, thank you. Yes. Thank you very much for joining us. And I hope, my dear students, you all are clear with all your doubts and all your questions. So stay safe, stay at home, and study well. Okay, all the best. Thank you very much for joining us. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.